آج کی یہ پریس کانفرنس تحریک انصاف کی ہماری جو برمنگھم کی غلامی نامنظور ٹیم ہے ان کے پلیٹ فارم سے بلائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو صدارتی آرڈیننس جسے پوری آزاد کشمیر کی ساری قوم نے مسترد کیا ہے اور اسے کالے قانون کا ٹائٹل دیا ہے، آج پوری کشمیری قوم ہر جگہ پر سراپے احتجاج ہے اور اس کالے قانون کے تحت لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے جس طریقے سے میرپور میں، راولا کوٹ میں، پونچھ میں، کوٹلی میں، مظفر آباد میں اور دیگر علاقوں میں لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ناجائز ان کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں۔ میرپور میں تحریک انصاف کے قائدین کو گرفتار کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے دیگر حصوں میں وہ لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے جائز عوامی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے اوپر کیس بنائے گئے، ناجائز پرچے درج کیے گئے، گرفتاریاں کی گئیں۔ ہم ان سب کا یہاں بھرپور مذمت کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں جو وہاں پر حکمران ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور فی الفور جتنے سیاسی قائدین ہیں انہیں رہا کیا جائے اور اس کالے قانون کو، اس صدارتی آرڈیننس کو واپس لیا جائے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ وہی ڈاکومنٹ ہے جو 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج کو کچلنے کے لیے وہاں پر نافذ کیا گیا تھا۔ لیکن جب وہاں پر بھی نافذ کیا گیا تھا تو دوسرے ہی دن 9 ستمبر کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے شہری حقوق پر ایک حملہ قرار دیا تھا، اور اسی طرح ہیومن رائٹس کا جو ایشین واچ فورم ہے انہوں نے اسے پاکستان کے آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل ہے 16 اس سے اور بین الاقوامی جتنے قوانین ہیں انسانی حقوق کے اور شہری آزادیوں کے جن کا پاکستان کے بحیثیت ریاست خود سگنیٹری بھی ہے، ان سب کا یہ متصادم قرار دیا گیا تھا۔ بھارت کے مقبوضہ کشمیر جو ہے اس میں جب یہ اس طرح کے کالے قوانین نافذ کیے جاتے رہے تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو کہ اب خوش قسمتی سے صدر آزاد کشمیر بھی ہیں، وہ اس کے اوپر ہمیشہ بھرپور احتجاج کرتے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی صدارت کے ہوتے ہوئے اس طرح کے کالے قانون جو کہ اس کے اوپر درج ہے، اس کی جو ڈاکومنٹ ہے کہ 29 اکتوبر کو اسے تیار کیا گیا ہے اور 30 اکتوبر کو اسے نافذ کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سے ہم اتنی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ہمیشہ عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی، جس طرح آپ کی تاریخ ہے ساری ایک عوامی جدوجہد کی، ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کالے قانون کو آپ فی الفور واپس لیں گے اور جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں جن کے اوپر یہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں یا جو گرفتار ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ انگلینڈ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے یہ آج اس جو آزاد کشمیر کے اندر صدارتی آرڈیننس جو عوام کے اوپر لایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ ان مقبوضہ کشمیر کی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ جس طرح لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ آپ انڈیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں قائد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے 25 سال آزاد کشمیر کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے انڈیا کے خلاف جب سے میں اس ملک میں ہم نے نعرے لگائے، ہم نے ملین مارچ کیے، ہم نے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ظلم کے بدلے میں ہم نے اپنے گھر نہیں دیکھے، باہر کاروبار نہیں دیکھے اور ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کیے، اور آج اس کے متبادل ہمیں یہ آپ نے جو کالا قانون کشمیریوں کے اوپر لاگو کیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں آپ ریاست کے سب سے بڑے عہدے پہ ہیں، آپ اس کو فی الفور کینسل کریں۔ جو بھی آپ نے یہ
लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए एक काला कानून बनाया है, और हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अवाम पे जुल्म और बर्बरियत का गवर्नमेंट पाकिस्तान ने और बाकी इदारों ने जो बाज़ार गर्म कर रखा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये अब इसको आज़ाद कश्मीर के अंदर भी लाना चाहते हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर के जो कश्मीरी हैं ये ऑलरेडी साबित कर चुके हैं अपनी मूवमेंट के ज़रिए कि हम इस किस्म की कोई गैर इखलाकी और इस किस्म की कोई जो उनके हकूक़ को गस्ब करे, सलब करे, उसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करने का मकसद ये था कि 24 जो नवंबर है उसको पीटीआई के हवाले से इमरान खान साहब ने एक फ़ाइनल कॉल दी हुई है। उस सिलसिले में जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के हमारे प्रेसिडेंट हैं जनाब क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की मीरपुर रेस्ट हाउस के बाहर, जिसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है मीरपुर ज़िले के जनाब साइंस ज़ुल्फ़िकार साहब और अमीद पोठी साहब की इनिशिएटिव थी। तो जब वो मीटिंग वहाँ पर हुई तो उसके बाद उनको एफआईआर के ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको ये जवाज़ दिया गया कि आपने सदारती आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ वर्जी जो नया 24 जारी हुआ है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है, और चूँकि आपको इजाज़त लेनी चाहिए थी अकाम बाला से, उसके बाद आपको मीटिंग करनी चाहिए थी। तो फिर इस सिलसिले में हम एज ए पीटीआई ओवरऑल भी हम इस आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ थे, हमेशा ही हमने बात की, लेकिन जो ये जो 2 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं 3, इस हवाले से भी हम चाहते हैं कि यहाँ से एक हमारी पीटीआई की आवाज़ बुलंद हो। चूँकि जो पाकिस्तान में 1.5-2 साल से वहाँ पर जिस तरह से लाकानूनीत, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिस्टम नहीं है, अदालतों से जान के इमरान खान साहब को, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, इसी तरह उनके बहनों को जिस तरह उठाया जा रहा है बिल्कुल काले कानून के तहत, इसी तरह ये जो आज़ाद कश्मीर है, मैं ज़रूर हमारे सदर जनाब रियासत जिन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए और जमहूरियत के लिए और मसला कश्मीर के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की अनथक मेहनतें भी और कोशिशें भी हैं, और हम उनसे ये ज़रूर दरख्वास्त करते हैं कि आपकी मौजूदगी में एज ए प्रेसिडेंट ये आर्डीनेंस जो है आपके लिए एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन ये आपको सूट और आपके शयान शान नहीं है जो हिस्ट्री में आपके नाम के साथ लिखा जाएगा। हम इसको बुरा समझते हैं और आपको भी यकीनी तौर पर ये ऐसा आर्डीनेंस वापस करना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर का जो खिता है वो बेसिकली बेस कैंप हम कहते हैं, वो एक ऐसा मतनाज़ा एरिया है जहाँ से हम मकबूजा कश्मीर के उस पार कश्मीरियों को भी ये मैसेज देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खुश हैं और हमारा नज़रिया, हमारा जो विज़न है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उस नज़रिए और उस नारे को आप जो पाकिस्तान के अकाम बाला हैं और स्पेशली वो इस्टेब्लिशमेंट जो है बिहाइंड बैठी हुई है, जो पीटीआई और इमरान खान के बुग़्ज़ में हर वो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हर वो नॉन डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं जिससे मसला कश्मीर को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब भी उसमें शामिल हैं, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी शामिल है, और इस तरह के जो हालात पाकिस्तान में भी पैदा किए जा रहे हैं, इनकी मजम्मत मैं करता हूँ कि 24 नवंबर लंदन में भी हम मुज़ाहरा करने जा रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के तमाम उन लोगों को बिलखुसूस में ज़िला कोटली मीरपुर डिवीज़न के लोगों से कहूँगा कि हमारा उस एरिया से तल्लक है कि आप 24 नवंबर को हर सूरत में इस्लामाबाद पहुँचें और इमरान खान की इस कॉल को लब्बैक कहें। दोस्त इकट्ठे हुए गुलामी नामंजूर के जितने भी हम भाई हैं, हमारा तो एक ही मिशन है कि पाकिस्तान में जो है वो एक कानूनी जो हुकूमत है वो आए। सबसे पहले तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के लेवल से भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ कि जितनी माइग्रेशन 70 साल में इस दफ़ा हुई है, इससे पहले 70 साल की तारीख में नहीं हुई, और जितनी औरतों को जितनी औरतों की गिरफ्तारियां हुई हैं 70 साल में, इससे पहले औरतों की गिरफ्तारियां नहीं हुई। नाम सिर्फ रह गया इस्लामी और जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूर नज़र नहीं आ रहा, ना ही ये जमहूरियत है। सदारती आर्डीनेंस जारी हो रहे हैं, पहले इस्लामाबाद से होता है, फिर आज़ाद कश्मीर से जाकर होता है, और आज़ाद कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव पार्ट है पाकिस्तान का, जिस पे सारी दुनिया की नज़रें हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की रियासत को कि इन चोरों को बचाने के लिए आप किस हद तक जाएंगे। मुल्क में इतनी बेरोज़गारी और इतनी
तबाही की तरफ ये हमारा मुल्क जा रहा है। बराए मेहरबानी जो जिसका हक है, जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्ट हुए हैं फॉर्म 47 की, ये जो जितनी जैली लोग हैं, जैली या आर्टिफिशियल जो हुकूमत आपने बनाई हुई है, इसकी वजह से मुल्क पूरा तबाह हो रहा है। जिस अभी जो अवामी एक्शन कमेटी है, अगर ऐसी तंजीमें बनती हैं कि तो उसके पीछे रियासत अगर इन्हें संभालना चाहे अपने बच्चों को, अपनी कौम को, अपनी आवाम को, तो ऐसी तंजीमें नहीं बनती। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पता नहीं पहले बांग्लादेश टूटा था तो आप पता नहीं कितने हिस्सों में तकसीम होगा। हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक ऑर्डिनेंस मौजूद है, उसको कहते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत हिंदुस्तानी फ़ौज को पूरी इजाज़त है, वो किसी को भी घर से उठा लें, ना को बात करने की इजाज़त है, ना किसी को एहतजाज करने की इजाज़त है, किसी को भी घर से उठा लें, किसी की माँ बहन को गोली मार दें, किसी के बच्चे की आंखों पे पैलेट गन लगा दें, उनको पूरी इजाज़त है। और उस इजाज़त का अगर थोड़ा सा इसकी डुप्लीकेट पिक्चर देखनी हो तो अभी यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में शुरू हो चुकी है, वो भी सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से जारी होने वाले सदारती आर्डिनेंस के बाद वहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, यहाँ पे पुलिस फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट दिया गया है। अब सिर्फ इतना अल्फाज का हेर फेर है, और उस अल्फाज के हेर फेर के बाद अब लोगों के बच्चों को घरों से उठाया जाएगा, उनको सड़कों से उठाया जाएगा, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाएगी। और हिंदुस्तान को जब कहा जाता है कि हमारा इलेक्शन में शायद मुकाबला पता नहीं मोदी से और पता नहीं किससे है, अब हिंदुस्तान के पास लॉजिकली ये चीज़ मौजूद है कि वहाँ पर अगर हमारे पास आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मौजूद है, जिस पर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का सदर पूरी दुनिया में जाकर कश्मीर की नुमाइंदगी का दावा करते हुए बात करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हिंदुस्तान की तरफ से वाज़ेह सवाल मौजूद है कि आपकी अपनी रियासत में इस वक्त पुलिस फोर्स स्पेशल पावर एक्ट मौजूद है। इस सूरत हाल में आप मकबूजा कश्मीर के लोगों की किस तरह से आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? इस वक्त मसला ये किसी एक जमात का नहीं है, किसी एक ग्रुप का नहीं है, मसला उस गैरतमंद कश्मीरी का है जो गैरतमंद कश्मीरी मकबूजा कश्मीर की माओ बहनों के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और आइंदा भी खड़ा रहेगा। आज भी लोग सदर रियासत हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, कोई भी हो, जब वो बरतानिया में आते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, तो मकबूजा कश्मीर की वजह से ये लोग जो सारे यहाँ पर बैठे हुए ये 20-25 साल से मकबूजा कश्मीर की वजह से जेबू से पैसे भी लगा रहे हैं, अपनी एफर्ट भी कर रहे हैं, बसें भी भर रहे हैं, घर में हमारी बहनों को खाने के लिए भी कह रहे हैं कि सुबह नाश्ते का इंतजाम करें, दिन को लंच का, रात को डिनर का, तो वो अपनी माओ बहनों की इज्जतों के लिए। और जब माओ बहनों की इज्जतों को कंप्रोमाइज़ करने पे यहाँ पे पोजीशन आ जाए कि सदारती आर्डिनेंस के जरिए आप आज़ाद कश्मीर की आवाज़ें बंद करनी शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में गैरतमंद बोलेंगे। और गैरतमंदों को बोलने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करने के लिए मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उस गैरत की आवाज़ को बोलने के लिए आपने ये बात भूल गए कि वो किसके साथ हम चले थे और किसके साथ नहीं चले थे। जब गैरत की बात है तो मकबूजा कश्मीर के लिए आप लोग खड़े हो गए और आज फिर खड़े हो गए। तमाम लोगों का, तमाम जमातों का और तमाम नज़रियाती लोगों का सिर्फ ये मुतालबा है कि सदारती आर्डिनेंस को आप आज ख़त्म करें या कल ख़त्म करें, आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा।